8. Today we are on lecture number 1 for chapter number 8, that is role of parliament in democratic country. Student, one of the most important chapter to learn to understand, not only for your this exam purpose, for your higher study as well. So whatever the point what we will going to discuss in this chapter, that you have to consider as an important point for your future and for your next classes as well. This will help you a lot to understand the democratic way, the democratic system of our country, and as well as it will help you to gain the extra knowledge. So in every aspect, this is one of the important chapter to learn to understand. Okay. So I think in previous lecture, one chapter what we have learned is about the constitution. Constitution मतलब संविधान. In a common sense, what we can say, it's a book of law. The Indian citizen or the citizen of the country, what are the rights, what are the duties, do and don't, which indicate that would be considered as the constitution. Constitution के अंदर जिसको हम संविधान कहते हैं, we are every citizen of the country is like we have to respect, we have to follow the rules and regulations which are mentioned in constitution. In this chapter we are going to talk how the role of parliament. Parliament आपने टीवी में, मम्मी पापा के पास, न्यूज़पेपर में, जिसको हम संसद कहते हैं, पार्लियामेंट के बारे में सुना होगा. When we are talking about the democratic मतलब क्या? लोकशाही. लोकशाही means what? In class 6 and 7 we have learned about the democracy, the rule by the people, for the people, of the people. Okay, that what we say is the democracy country. Now in world we are like more than 250 countries we are having. Most of the countries either they are democratic or the monarchy. दो तरीके से कोई जगह पे शासन होता है, लोग फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन. बिफोर ब्रिटिशर्स केम टू अवर कंट्री, इंडिया के अंदर मोनार्की थी, बहुत अलग अलग राजा थे. हमने मुगल एरा पढ़ा है, सल्तनत एज पढ़ा है. So they were the ruler of the area or the country. Then in ancient time we know there was a Magad or Bacchi Sangh, जनसंघ थे, महाजनपद थे, जनपद थे, महाजनपद थे, if you remember. So janpad, one kind of democracy, Mahajanpad like Magad and that, ruled by the king or queens. So every state, every place is controlled, is administered by one or another form of government. Either it is a monarchy or the democracy. Now in world there's two types of government we can see. Either it is a monarchy or the like Saudi Arabia है, it's a monarchy. वहाँ पे राजाशाही, the rule it is ruled by the king or queen. So who gives the power to the government to take a decision? Now our Prime Minister is Narendra Modi, President Shri Ramnath Kovind. So they took a decision on behalf of us. Now who give this power? अब जैसे कोई एक कायदा बनाया गया, से फॉर लॉकडाउन हुआ ड्यू टू दिस पैंडेमिक, कोरोना पैंडेमिक, लॉकडाउन हुआ. ओके, सो द डिसीजन वाज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर that entire India will be shut down for a lockdown for 3 months, say for example. Now who gave the power to government or who gave the power to Shri Narendra Modi? He is our prime minister. तो prime minister उनको किसने बनाया? Who made him prime minister and who gave the power to take a decision? Now ultimately we the citizen are ultimately the power lies with the people. We elect him. So directly decision making किसका है? ये हमारा decision है. So in the democracy, this is the essence of democracy. So who give the power to the government to the decision and implement the law? कायदे बनाने हैं, पावर किसने दिया, किसने ऐसा बोला कि हाँ आप ऐसा रूल्स रेगुलेशन बना सकते हो? So who gave the power?
So the answer to the question depend on what type of government is that particular country in. Democracy, supreme power is vested in the people and exercised directly by them or by their elected agent. अब जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि who gave the power, why he or she is taking a decision, who gave the power, so it's depend on the type of government. अगर वो मोनार्की है, राजाशाही है, तो राजा के पास अल्टीमेटली पावर है, so they he or she is having the power to take a decision. उनको वहां पे किसी को पूछना नहीं है. बट country like India where the democracy is there, so ultimately the people, as we know, we know the definition of democracy. It's a by the people, for the people and of the people. Decisions are taken by the people. Ultimately, indirectly who rule? Indirectly we are the ruler of this country. People of the country, citizen of the country are the decision makers. So they elect their leader by the casting a vote. अब नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए? So we elect him. हर 5 साल में we know इलेक्शन होते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी we know कि 18 साल और उसके ऊपर के हर कोई व्यक्ति they can cast their vote. Yes, and it is our fundamental duty to cast our vote. वोटिंग करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. So we elect our representative. We elect our leader by whom we like to govern. कौन हमारा लीडर बनेगा ये हम चुनते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं. So the elected leaders are representative from the government in democracy. Elected members होते हैं in the democracy. We cast our vote. हम वोट देने जाते, हम सिलेक्ट करते. We elect our leader by whom we like to govern. So in a democracy, the government has to give the clarification and provide reason for the decision undertaken. Now here, in a democracy, whatever the decision are taken by the government, they are responsible to answer the question why the decision is taken. अब कोई भी डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, से फॉर एग्जांपल दिस लॉकडाउन, ओके, या तो पुरी में जो अटैक हुआ उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, से फॉर वन एग्जांपल. सो गवर्नमेंट इज लायबल टू गिव द आंसर टू द पीपल. यहाँ पे एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री वी आर ऑन द सुप्रीम पावर. डायरेक्टली वी आर इलेक्टिंग आवर लीडर्स एंड दे रूल ऑन अस. So they are liable to give the answer. हमारे देश की लोकशाही के अंदर कोई भी गवर्नमेंट है, वो सिटीजन जो भी प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन हो रहा है, उसका रीजन, उसका आंसर देने के लिए वो बंधा हुआ है. ही और दे आर लायबल टू गिव द आंसर टू रीजन or the reason to the citizen of the country. So in this type of government, the power to take the decision and run administration in the hand of the, in a monarchy, उससे उल्टा है, the power and decision making is lied with the king or queen. See, in the monarchy, in this type of government, the power to take the decision and run the administration in the hand of the king or queen. So king discuss the matter with his group and advisors, but the power to take the final decision lie with the king or queen. Now हमें पता है मुगल era, you have seen the serial of तेनाली रामन और अकबर बिरबल और विक्रमादित्य, you know number of monarchy types हमने देखे, राजाओं के बारे में पढ़ा है. So ultimately power lie with the king, but he take a suggestion, advice from the minister. वो अपने मंत्रियों से सलाह सूचन करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, बट अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग पावर लाई विद द किंग और क्वीन. और डेमोक्रेसी में क्या होता है? अल्टीमेटली पावर लाई विद द पीपल, सिटीजन ऑफ द कंट्री. सो दिस इज द डिफरेंस. मोनार्की के अंदर क्या होता है? किंग और किंग इज अ सुप्रीम पावर, दे हैव द राइट टू टेक अ डिसीजन. अब राजा ने जो डिसीजन लिया उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. बट इन डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी के अंदर पीपल आर द सुप्रीम पावर एंड दे आर like they can ask the question to the government and government is liable to give the answer. So this is the difference between monarchy and democracy. Now the most important characteristic of democracy is
that the sole power or power to rule is not in the hand of one person or group of person. अब डेमोक्रेसी का एसेंस है कि कोई एक व्यक्ति, से फॉर प्राइम मिनिस्टर भले ही नरेंद्र मोदी है, डू अग्री, बट अल्टीमेटली पावर उनके पास नहीं होता है, as he is responsible towards the nation, to the citizen of the country. So डेमोक्रेसी के अंदर कभी कोई एक व्यक्ति के पास पावर नहीं होता और 5 साल के बाद हर 5 साल में इलेक्शन आता है. If the particular party group of the people are not working in a proper manner or in the satisfactory manner, next time उसको elect नहीं करेंगे. So no one is permanent and no one is the solo powerful in the democracy. So the most important characteristics of democracy is that the sole power or the power to rule is not in the hand of one person. Okay, it is not in a one person, but the group of the people. So every citizen is member in the decision making process. People themselves are a creator of their destiny. Now people, the citizen of the country, are the creator of their destiny. By whom we like to govern, हमें किसके पास से राज्य करवाना है, who will govern us, that decision will be taken by the people. अगर आज हम बोलते हैं कि सरकार अच्छी नहीं है, सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ने ये काम गलत किया, so ultimately who is responsible? Me and you, and who the voters are the ultimate responsible. उसके लिए किसकी responsibility है? ये हमारी responsibility है. Why it is our responsibility? As we elect them. जब हमने इस इलेक्शन गलत किया तो we can't put our responsibility on other shoulder. ये हम किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते कि हाँ सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, बहुत घटिया काम है, नहीं कर रही है, ये नहीं, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि चॉइस हमारी है. सो दिस इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इन डेमोक्रेसी वी इलेक्ट द लीडर बाय whom we have to govern, and the government which is elected, which is selected, are responsible toward the nation, toward the citizen of the country. So the most important characteristic of democracy, please underline this. So the most important characteristic of democracy is the sole power or the power to rule is not in the one hand or one person or group of the person. Every citizen member in the decision making progress and the process. आज भारत के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है, ultimately we are one of the part in that decision making. So people themselves are the creator of their destiny. तो डेमोक्रेसी के अंदर हम हमारा भाग्य खुद लिखते हैं. इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर हर एक व्यक्ति को बहुत सोच समझ के वोट करना चाहिए और वोट करना ही चाहिए. दिस इज द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी टू कास्ट अवर वोट. राइट भी है, अधिकार भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है. और सोच समझ के किसी की बातों में आके वोटिंग नहीं होता है, अपनी अकल लगा के सोच समझ के वोटिंग कर रहा है. अल्टीमेटली whatever the decision will be taken by the government, ultimately we are responsible, as indirectly we are ruling in our country. So the word democracy in Gujarati is a लोकशाही, लोगों द्वारा राज कराए, लोकशाही, जहां पे लोगों का राज्य है उसको कहा जाता है लोकशाही. So in Hindi and Gujarati we will use the word लोकशाही. So democratic government is for the people. It means the welfare of the people is the main aim. Now we know what is the form of democracy. What is a democracy? Democracy means the rule by the people, for the people, of the people. By the people means what? We elect our leaders. So by the people, for the people. Why we are electing them? What is the work of that leader or of that party? For the people, लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए काम करना है. Of the people, जब तक हम चाहते हैं तब तक वो सरकार रहेगी. And if the party, if the government is not doing in a proper work, we can remove them. So ultimately powers lie with us. So democracy run by the people as the representative elected by the people run the administration. Now see form of the government. Form
of the students. One thing you have to keep in mind, गवर्नमेंट का स्पेलिंग गवर्नमेंट बोलते हैं, एन इज अ साइलेंट, बट स्पेलिंग में कभी भूल नहीं जाना है. नाउ सी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. Just now we are talking about two form. One is a monarchy and second is a democracy. Now see what is the form of government. One is a monarchy, जिसको हम राजाशाही कहते हैं. Is a monarchy. It's a monarchy. Okay, and one is a democracy. One is a democracy. Now say which is a good one. पहले के समय में राजाशाही थी, राजा रूल करते थे, अब डेमोक्रेसी है. So here which is a better one, which is a better for us. Always democracy is better one. See घर के अंदर मम्मी डैडी हमारे एल्डरली है, they will take a decision. But हमेशा वो अपना डिसीजन दे. But sometimes if they ask you about your choice, your feeling, then you will feel happy. Okay, so डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा लोगों की इच्छाएं, भावनाएं, उनको प्रायोरिटी दी जाती है. नाउ मोनार्की मतलब राजाशाही, कुछ कंट्रीज में मोनार्की है, कहीं पे डेमोक्रेसी है. नाउ डेमोक्रेसी ऑफ विल बी ऑफ टू टाइप. नाउ फर्दर डेमोक्रेसी विल बी ऑफ टू टाइप. वन इज अ फेडरल, फर्स्ट इज अ प्रेसिडेंशियल. प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वो अमेरिका में देखी जा सकती है. प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आपको अमेरिका के अंदर, जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट है. सी इंडिया में भी प्रेसिडेंट है, बट द सुप्रीम पावर्स और द एक्सिक्यूटिव पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं. ओके, सो वन इज अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एंड अनदर टाइप इज पार्लियामेंट्री पावर, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. सो इन इंडिया वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री. पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. ओके, नाउ से डेमोक्रेसी टू टाइप की, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट मींस व्हाट, जिसके अंदर प्रेसिडेंट के पास अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग के पावर होते हैं. और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, जो अल्टीमेटली पावर लाई विद द पार्लियामेंट. उसके एग्जीक्यूटिव बॉडीज में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, बट अल्टीमेटली पावर्स लाई विद द पार्लियामेंट. एंड पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ पीपल, लोकसभा और लीडर जो होते हैं उनसे बनी होती है. सो अल्टीमेटली पावर विद द लाई विद द पीपल. नाउ दिस प्रेसिडेंशियल पावर, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, फर्दर उसमें भी दो टाइप है. One is a unitary. One is a unitary government and one is federal. Another is a federal government. एंड सेम पार्लियामेंट्री के अंदर भी यूनिटरी गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट. नाउ सी
पहले एक बार वापस समझो, फिर मैं आपको आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ यूनिटरी गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट. सी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ टू टाइप, दो टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वन इज अ मोनार्की, अनदर इज डेमोक्रेसी. मोनार्की राजाशाही, जहां पे राजा अल्टीमेट पावर होता है. इन डेमोक्रेसी टू टाइप ऑफ सिस्टम विल बी देयर, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट गवर्नमेंट. अमेरिका इज अ गुड एग्जांपल ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर. प्रेसिडेंशियल पावर होता है और पार्लियामेंट हो जहां पे होती है जो डिसीजन मेकिंग करती है. इन प्रेसिडेंशियल पावर आल्सो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है और फेडरल गवर्नमेंट. एंड सेम इन द पार्लियामेंट गवर्नमेंट के अंदर यूनिटरी गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट होती है. नाउ सी व्हाट इज अ फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट. सी इन द डेमोक्रेसी किसी के यहाँ पे प्रेसिडेंट पावर में होते हैं, ओके, एंड द सेंट्रल डिसीजन, सेंट्रली जो भी डिसीजन एंड द पावर्स lie with the one or the central government, okay, that is the unitary we can say unitary government. So kind of government in the system which a single power which is known as the central government controls the whole nation. Now see what is a unitary. Now see unitary government means what? It is the kind of government system in which a single power which is known as the central power, which is known as the central government, controls the whole. Now see again, अब यूनिटरी गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, चाहे वो पार्लियामेंट गवर्नमेंट है, वहां पे दो तरीके से काम होता है. वन इज द यूनिटरी गवर्नमेंट, या तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट होगा या तो फेडरल सिस्टम होगा. इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम है, बट हियर यू शुड अंडरस्टैंड, योर कांसेप्ट शुड बी क्लियर. यूनिटरी गवर्नमेंट मींस व्हाट? यूनिटरी मतलब एक, यूनिट, वन, सिंगल पावर, सिंगल गवर्नमेंट. A kind of government system in which a single power, what we are talking, a single power which is known as the central government, जो देश के अंदर लोकशाही है, चाहे वो प्रेसिडेंशियल है, चाहे वो पार्लियामेंट्री रूल है, but the single power lie with the single president or the central government. Decision making lie with the central government that controls the whole nation. Okay, इसको कहा जाता है यूनिटरी गवर्नमेंट. यूनिटरी मतलब एक मतलब सोल पावर जिसके पास है, whether it is a federal presidential government or it is a parliamentary government, इसको कहा जाता है यूनिटरी गवर्नमेंट. नाउ सी फेडरल गवर्नमेंट मतलब क्या? Now see what is the federal government? Government is composed
of three distinct branches, and they are legislative, it's a legislative, executive, legislative, executive, and now see, this is the very important point. ये सीखना इसलिए जरूरी है कि हमारे देश के अंदर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, फेडरल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है. सो फेडरल गवर्नमेंट मींस व्हाट? डेमोक्रेसी के अंदर फेडरल गवर्नमेंट इज composed of three distinct branches. फेडरल गवर्नमेंट के अंदर 3 ब्रांचेस होगी, जो लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग, जो कायदे बनाएगी, लॉ मेकिंग. अब वो कायदों को एग्जीक्यूट करना है मतलब अमल में देना है. एक संस्था लेजिस्लेटिव जो कायदे बनाती है, जिसको हम संसद कहते हैं. एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको एग्जीक्यूट करते हैं, अमल में करवाते हैं. एंड जुडिशरी, अगर वो काम नहीं हो रहा है तो कायदे कानून से उसको करवाना पड़ रहा है, या तो उसके पनिशमेंट या तो जो भी वर्क होता है जुडिशरी. सो 3 ब्रांचेस फेडरल सिस्टम में. गवर्नमेंट इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ब्रांचेस, दैट इज द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेटिव क्या करेगा? लेजिस्लेटिव इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, इट्स वर्क इज अ लॉ मेकिंग. एग्जीक्यूटिव उसको अमल में लाने का काम करता है. एंड जुडिशरी, अगर वो काम नहीं हो रहा है, द लॉ इज ब्रेक और द रूल्स एंड रेगुलेशन हैज टू बी फॉलो. सो दिस इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मोनार्की, राजाशाही, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी मतलब लोकशाही. 2 टाइप की लोकशाही होती है, वन इज अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट या तो पार्लियामेंट गवर्नमेंट, दोनों में 2 तरीके से काम होता है. आइदर इट इज अ यूनिटरी गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा? a kind of government system in which a single power, which is known as the central government, controls the whole. सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरा होल नेशन को कंट्रोल करती है. सी वी आर हैविंग स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे गुजरात राज्य की सरकार है, गुजरात सरकार है, और उसके ऊपर संसद है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है. सो फेडरल सिस्टम है, भारत के अंदर फेडरल गवर्नमेंट है. फेडरल गवर्नमेंट मींस व्हाट? इन द पार्लियामेंट्री फेडरल गवर्नमेंट मींस व्हाट? गवर्नमेंट इज द कंपोज्ड ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ब्रांचेस. इसके अंदर 3 अलग-अलग ब्रांचेस होगी. वन इज लेजिस्लेटिव जो लॉ मेकिंग करेगा, एग्जीक्यूटिव मतलब जो कायदे जो नियम बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड द जुडिशरी, अगर वो ब्रेक हो रहा है, नहीं ठीक से हो रहा है तो जुडिशरी वर्क होता है. सो इट इज मेड अप ऑफ 3 ब्रांचेस. इंडिया में भी ये 3 सिस्टम से ही हमारा गवर्नमेंट चलता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सो ये आपको याद रखना है. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट यू विल कीप इन माइंड. This is IMP point. It is not given in your book, but it is important to understand. So now see, your school must have been organized election for the school panchayat
And similarly, जैसे हमारे स्कूल में now you all are in class 8 and you have not seen the election of the head boy head girl due to this pandemic. Since 1.5 year we are facing pandemic. पर अगर आपको याद हो तो जब आप क्लास 5th में थे तो हमारे हेड बॉय हेड गर्ल का इलेक्शन हुआ था, ठीक है, जहाँ पे क्लास के बच्चों को मॉनिटर हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्शन हुआ एंड उसमें से फिर हमने हेड बॉय हेड गर्ल को सिलेक्ट किया था. So class monitor also must have been elected. अब हमेशा एक चीज होनी चाहिए कि जैसे कोई टीचर बोल देगा हाँ ये लड़का मॉनिटर बनेगा या ये लड़की कैप्टन बनेगी, बट इलेक्शन होनी चाहिए. जैसे आपके क्लास में 40 स्टूडेंट है, सो 40 स्टूडेंट शुड कास्ट देयर वोट कि किसको वो कैप्टन बनाना चाहते हैं एंड द मैक्सिमम वोट जिसको बना मिलेगा वो वहाँ का मॉनिटर बनना चाहिए. So similarly, your class monitor also must have been elected. At times it's happened that the monitor is not elected but selected. पर स्कूल में क्या होता है, इलेक्शन नहीं होता, टीचर बोल देते हैं कि हाँ ये लड़का कैप्टन बनेगा, ये लड़की कैप्टन बनेगी, बट दिस इज द रॉन्ग सिस्टम. इलेक्शन मस्ट बी देयर. सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, मुझे पसंद नहीं करना है एज ए टीचर, बट यू हैव टू सिलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव. As a result, other who want to be the monitor feel the discontented and the express their disapproval. इसीलिए क्लास में झगड़ा होता है कि मुझे मैम ने मॉनिटर नहीं बनाया, मुझे बनना था, या तो मैम को वो अच्छा लगता है, अच्छी लगती है इसलिए बनाया. सो ऑलवेज डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन इज द वे टू इलेक्ट द मेंबर. नाउ सी वुड यू प्रिफर डायरेक्ट सिलेक्शन? जस्टिफाई योर आंसर. डायरेक्ट सिलेक्शन अच्छा होता है क्या, आप इलेक्शन करके आओ वो अच्छा होता है. सो ऑलवेज वुड यू प्रिफर डायरेक्ट सिलेक्शन? डायरेक्ट सिलेक्शन से अच्छा होता है क्या कंपटीशन इलेक्ट होके आओ. नाउ सी एक्टिविटीज लाइक इट इज लाइक यू नो ऑर्गेनाइज इलेक्शन फॉर द स्कूल पंचायत वी आर हैविंग एंड मेक द वेरियस डिपार्टमेंट एंड असाइन द रिस्पांसिबिलिटी. जैसे कोई क्लास मॉनिटर होगा, कोई बुक वर्क देगा, कोई होमवर्क का चेकिंग करेगा. सो इन स्कूल वी यूज्ड टू डू दिस. सो दैट व्हाट वी से इज द डिपार्टमेंटल हमने असाइन किए हुए हैं. सो व्हाट वुड यू डू टू बी द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल? So election will be there. आपको अच्छा काम करना पड़ेगा. How would you do select the prefer to the various committee to help in the administration of school and the so on. See, like it is done in the school panchayat, representative are elected in a democratic government. और डेमोक्रेसी के अंदर भी हम मतलब जो 18 साल से ऊपर के वो वोट करने चाहते हैं. हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और हम जिसको वोट करते हैं, मेजोरिटी जिसको मिलती है, सबसे ज्यादा वोट मिलता है, वो हमारा नेता बनता है. So like it done in the school panchayat, representative are elected in the democratic government. The leader of the party that wins the majority. Majority मतलब बहुमत. Now see घर के अंदर भी होता है. If you are 6 member or 7 member, if it is a big family, say for an example, what is to be done in the dinner? Dinner में मम्मा क्या बनाए? अगर 2 बोलेंगे रोटी सब्जी और 4 बोलेंगे पाव भाजी, तो पाव भाजी बनेगी. मेजोरिटी जो डिसीजन होगा दैट विल बी टेकन इन द कंसिडरेशन. सो इंडिया हैज अडॉप्टेड लाइक यू नो लाइक इज डन द स्कूल पंचायत. सो मेजोरिटी पार्टी विल विन एंड बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द सिलेक्ट द मेंबर फ्रॉम द ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. अब जैसे हमारा इलेक्शन हुआ इंडिया का, भाजपा बीजेपी की गवर्नमेंट को मेजोरिटी मिली, सबसे ज्यादा सीट्स मिली. अब उसके जो मेंबर जो सिलेक्ट होके आए, उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता, अपना लीडर सिलेक्ट किया. समझ में आ रहा है? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैसे बने हमारे? सो बीजेपी वॉन द मैक्सिमम सीट, इट गेट्स द मेजोरिटी. सबसे ज्यादा सीट किसको मिली? सभी पार्टियों में बीजेपी को मिली. अब बीजेपी के जितने मेंबर सिलेक्ट होके आए, उन्होंने अपना लीडर किसको बनाया? प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया? नरेंद्र मोदी को. And that is how Narendra Modi become our Prime Minister. तो indirectly Prime Minister ने किसको Prime Minister हमने किसने चॉइस किया? हमने किया. हमने क्या किया? We gave the vote to BJP or any party. That party come in the majority. Majority में जो सिलेक्ट होते हैं उन्होंने अपने नेता को सिलेक्ट किया. So becomes the Prime Minister. He select the member from the group of the elected representative to form the Council of Minister. अब नरेंद्र मोदी ने अपना कोई डिफेंस मिनिस्टर बनाया, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया. फिर वो अपनी टीम में अलग अलग काम असाइन करते हैं, डिपार्टमेंट बना देते हैं.
So these ministers are assigned various department and duties. अब समझ में आया कैसे होता है? जैसे राजनाथ सिंह है हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारामन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। सो सबसे पहले क्या होता है? इलेक्शन। इलेक्शन में द पार्टी who will rule the country, the party who will get the majority. मेजोरिटी मिलने के बाद उसके मेंबर्स होते हैं वो अपना प्राइम मिनिस्टर या तो लीडर चॉइस करते हैं। लीडर फिर अपने साथ कौन से डिपार्टमेंट में कौन काम करेगा वो सिलेक्ट करते हैं और उसको कहा जाता है मिनिस्टर, एंड they will assign the duty according to the department what they got. सो इस तरह से गवर्नमेंट के अंदर या तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर काम चलता है। सी वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्री। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले समझना है इलेक्शन होते हैं। सबसे पहले तो रूल कैसे होता है? दो टाइप से, मोनार्की या तो डेमोक्रेसी। मोनार्की अब है नहीं भारत में, हम डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के बारे में ही पढ़ना है। डेमोक्रेसी ऑफ विल बी ऑफ टू टाइप, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री भी टू टाइप की होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सोलो पावर होते हैं सब, बट इंडिया में क्या है? फेडरल गवर्नमेंट। इसीलिए मैंने लिख के दिया आईएमपी, फेडरल गवर्नमेंट आपको समझना है। गवर्नमेंट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। थ्री ब्रांचेस होगी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। और मेजॉरिटी जो विन करेगा, द पार्टी who elect the who won the maximum seat, वो मेजॉरिटी पार्टी कहा जाती है। मेजॉरिटी पार्टी के लीडर will select their leader, he or she will act as a prime minister and they select their members and and they will members from the group of elected representative form of the council of minister। मंत्रिमंडल की स्थापना होती है and this minister are assigned the various department and the duty। और प्राइम मिनिस्टर फिर अपने मंत्रियों को अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर गवर्नमेंट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ इज द पार्लियामेंट फॉर्म। हमारी संसद कैसे बनती है? पहले तो संसद क्या है, वो कैसे बनती है, हाउ इट वर्क। एज नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव बॉडी। संसद के बारे में, लॉ मेकिंग बॉडी के बारे में हम समझेंगे। सी स्टूडेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम बट फॉर योर फर्दर स्टडी, हायर स्टडी। ये आप जितना याद करोगे चैप्टर, लेसन, जितना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, दिस विल हेल्प यू इन योर फर्दर स्टडी। सो keep in mind one of the most important chapter to learn and to understand. Now write today's homework. Form of government. Write a short note on form of दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो हियर आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।